Good morning. Last turn we have started 1 upon root quadratic, 1 upon quadratic and root quadratic. These three type of the questions we have taken. Some extension of that one. Linear upon root. The three again, linear term upon root quadratic. Linear term upon quadratic. And linear term into root quadratic. Linear term into root quadratic. These three type of the question will be comes for 3 marks. Earlier, only if linear term is not there, then I have expressed you that this type of questions will be asked for 2 marks. Now, if linear upon, in place of 1, there is a linear term, then the question will be of 3 marks. Similar way, linear upon quadratic, वहाँ था 1 upon quadratic last term हम लोग लिए थे. So again that was the 2 marks, but this will comes for 3 marks. And linear term into quadratic, this also comes for 3 marks. Means px upon plus q, this is the linear term, upon root ax square plus bx plus c. This is quadratic, or px plus q upon quadratic only ax square plus bx plus c. And third one is px plus q into root quadratic. All these questions, how we will deal? Immediately it should be identified. Let px plus q is equal to lambda time derivative of the quadratic. Not root quadratic, quadratic term. Derivative of quadratic term. 2ax plus b plus mu. Means the linear will be retained as a lambda time d by dx of this quadratic term. 2ax plus b, a 2x plus b, x का derivative 1 plus b. Compare the coefficient of x as well as constant term. Compare the coefficient of x and constant term. Immediately you get a, lambda. P, left side coefficient of x is p. In right side the coefficient of x is 2a lambda, 2a lambda, lambda 2ax. तो coefficient of x is 2a lambda. देखिए lambda immediately आ गया, lambda is p upon 2a. lambda की वैल्यू आ गई p upon 2a. Compare the constant term. In the left side, constant term is q. Right side is b lambda plus mu. B lambda plus mu. Then mu is q minus bp upon 2a. lambda की वैल्यू रख दिया. हम लेमडा यहां रखे नहीं, एज इट इज रहने दे अभी है. तो देखिए क्या होगा. दैट एक्सप्रेशन बिकम लेमडा इंटू 2ax प्लस बी प्लस म्यू अपॉन रूट क्वाड्रेटिक.
px plus q is lambda time 2ax plus b plus mu, where lambda is p by 2a, mu is q minus bp by 2a. They are numerals only, means constant. Separate them. Lambda constant outside this derivative, 2ax plus b upon root ax square plus bx plus c. Plus mu is a constant. This is 1 upon root quadratic. Means this is I1 first integrand, this is second integrand I2. I2 I have discussed earlier. I2 के बारे में प्रीवियस टर्म पर, पिछले वाले टर्म पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. व्हाट अबाउट दिस I1? ये उसके पहले वाले टर्म का आ गया. डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ऑलवेज प्रेजेंट हियर. लेकिन रूट नहीं होता तब तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स लग जाता. रूट है तो क्या होगा? इसे हम आइदर टी लेके भी कर सकते हैं आर टी स्क्वायर. रूट में कोई आए एक्सप्रेशन तो उसको टी स्क्वायर लेने से आसानी होगी. फॉर I1 this become dt, means 1 upon root t dt. dx upon this is t square t dt. Let ax square plus bx plus c is a t square. t से भी आ जाएगा, लेकिन मैं टी स्क्वायर ही लेता हूं ज्यादातर. यदि रूट के अंदर है तो, बिना रूट में होता तो टी स्क्वायर. देन व्हाट वी आर गेटिंग, 2ax plus b dx is 2t dt. 2ax plus b dx is a 2t dt. 2ax plus b dx, 2ax plus b dx become 2t dt. And denominator root t square, that is t cancel. The final is 2 lambda t. t की वैल्यू रख दें तो I1 हो जाएगा 2 lambda रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको रिमेंबर भी रख सकते हैं कि 2 lambda रूट as, whatever the quadratic it will get the I1. I2 को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. तो बताया ना कि 2 मार्क्स का दिस क्वेश्चन, 1 मार्क का ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में समझिए आता है. समटाइम्स इफ सम डिफिकल्टी, माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लार्जर, कोफिशिएंट्स आर लार्जर, देन इट बिकम्स फॉर 4 आल्सो. तो यू शुड, यदि यह है देन द सेम प्रोसेस, केवल रूट नहीं होगा तो I1 मेरा बदल जाएगा. I1 आ जाएगा log t. I1 आ जाएगा log t. कैसे? ये देखिए, रूट नहीं है, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं मॉडिफिकेशन. ये देखिए हट गया रूट. यहां भी वही सिचुएशन आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा. ओके, I2 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के बजाय. लेकिन I1 देखें, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स. इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log t. तो लेमडा टाइम log ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाएगा. I1 लेमडा टाइम log ऑफ क्वाड्रेटिक, where lambda is p upon 2a. ओके, तो इफ आई विल टेक द क्वेश्चन, अल्फाबेट में समझ में उतना नहीं आ रहा है, आई विल टेक द क्वेश्चन, देन यू मे एबल टू अंडरस्टैंड.
3x plus 4 upon root of 2x square plus x minus 1. Three x plus 4 upon root of 2x square plus x minus 1. आप देखिए, स्टार्ट करें. लीनियर मीन्स 3x plus 4 is equal to lambda time derivative means 4x plus 1 plus mu. Lambda time derivative of quadratic, that is 2 into 2x plus 1, that is 4x plus 1 plus mu. Compare coefficient of x immediately. 4 lambda x means 4 lambda is a 3, lambda is 3 by 4. Constant term, left side is 4, right side is 1 lambda plus mu, means 4 is equal to lambda plus mu. So mu is equal to 4 minus lambda, that is 16 minus 3, 13 by 4. lambda and mu दोनों वैल्यू आ गई. वैसे इसको हम लोग कभी कभी ओरल भी निकाल लेते हैं. नो नीड टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन, लेकिन हम फैक्ट जाने हाउ इट विल कम्स. अदरवाइज तो मैं ओरली भी निकाल लेता. लेकिन प्रोसेस जब भी आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तब तो प्रोसेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन व्हाइल वी आर गोइंग टू द क्लास 12 examination, then certainly this to be shown to get n lambda and mu. Then I to be written as 3x plus 4 को क्या लिखना था? lambda टाइम 4x plus 1. lambda की वैल्यू हम बिल्कुल फाइनली बाद में रखेंगे. 4x plus 1 plus mu upon root of 2x square plus x minus 1 dx. Lambda constant, this comes 4x plus 1 upon root of 2x square plus x minus 1 dx plus mu is a constant, mu को outside कर दिया, 1 upon root over 2x square plus x minus 1. Now the two ways are there. Either I will take the I1, I2 separately, or both simultaneously I will proceed. So I am proceeding simultaneously both. Let 2x square plus x minus 1 is t square. Why t square? Because root is there. t से भी आ जाएगा, लेकिन हम रूट को अवॉइड करते हैं. Immediately 4x plus 1 dx is a 2t dt. 4x plus 1 dx is a 2t dt. Then I becomes lambda is a constant. 4x plus 1 dx becomes 2t dt. 2t dt upon root t square, that is t. Mu time, अब 1 by root quadratic यहां लिखेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेंड. इन फर्स्ट इंटीग्रेंड, अदरवाइज यहां भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. I2 में भी न्यू टाइम 1 by root quadratic का प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1 by 2x minus 1. एड एंड सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट स्टेप में ही बताया था. x स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन, x स्क्वायर प्लस x by 2 minus 1 by 2. नेक्स्ट एड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ
into coefficient of x is again half whole square. Means we will add 1 by 16 and subtract also 1 by 16. Add and subtract half coefficient of x whole square. So 1 by 16 add 1 by 16 subtract. Tt here cancel. I is a 2 lambda integral of dt plus mu time 1 by root 2, again constant taking outside, 1 upon root over, what is this? These three terms, the both x term and whatever the constant you have added, these three terms become a perfect square of x plus 1 by 4. X square plus 1 by 16 plus 2ab 1 by 2x. Now minus 1 by 2 minus 1 by 16 is remaining. साइन का ध्यान दिया करें भाई, अदरवाइज हाफ हो जाता है वो. 16 LCM minus 8 minus 1 minus 9 by 16. This minus 1 by 2 minus 1 by 16 both added or subtracted whatsoever sign, we are getting minus 9 by 16 means minus 3 by 4 whole square. Now apply the formula 1 upon root over x square minus a square dx is a log of x plus under root x square minus a square. x is a x plus 1 by 4, इसीलिए कैपिटल x लिखा है हमने, एंड a is 3 by 4. डायरेक्ट आ गया. इंटीग्रल ऑफ 1 is a t plus mu by root 2 log x means x plus 1 by 4 plus under root x plus 1 by 4 whole square minus 9 by 16. Now put the value of lambda, mu and simplify this, get your answer. T is a root over 2, lambda is a 3 by 4, T is root over 2x square plus x minus 1 plus mu is 13 by 4, then it comes 13 upon 4 root 2 log of 4x plus 1 by 4 plus, again it should be expanded, x square plus half x 2ab plus 1 by 16 minus 9 by 16, that is minus 8 by 16, that is minus half, plus c. Left the answer here. After reconciliation 2 to the 4, finally 3 by 2 root 2x square plus x minus 1 plus 13 upon 4 root 2 log mod of 4x plus 1 by 4 plus root over x square plus 1 by 2x minus half. अधिक से अधिक यहाँ एलसीएम लिया जा सकता था, बस उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं. So you can left the answer here. No need to solve more if proof is not there. So okay, the same process I will do for one by linear by quadratic. I am not taking again that too. Some of the questions I will take, देखेंगे यहाँ. Like as 10 power 6x देखिए. You are knowing the integration of tan square x only.
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी 10 पावर 6 को हम 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 4x 1 10 square x is written as sec square x minus 1 1 by 1 reduced होगा। This is 10 to the power 4x sec square x minus 10 to the power 4x। ये तो हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स है, फिर 10 पावर 4x आया, तो 4 को फिर से रिड्यूस कर दूंगा। 10 to the power 4x sec square x minus integral of 10 power 4x is written as 10 square x into 10 square x means sec square x minus 1 dx। टेन पावर 4x sec square x dx माइनस 10 square x sec square x माइनस माइनस प्लस 10 square x। देख रहे हैं 6 से 4 पर आया, 4 से 2 पर आया, 4 रहता तो ये वाला प्रोसेस केवल रहता। दिस 10 square x is written as sec square x minus 1 plus sec square x minus 1। now all are integrated, सभी इंटीग्रेट हो जाएंगे। let tan x is a t sec square x dx is a dt sec square x dx is a dt sec square x dx is a dt और इसका इंटीग्रल डायरेक्ट मालूम है। sec square x का tan x, then I becomes t power 4 dt minus t square dt plus tan x minus 1 का इंटीग्रल x। sec square x का इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूला tan x, 1 का इंटीग्रल x पावर 0 x पावर n plus 1 upon n plus 1 that is x power 0 plus 1 upon 1। I become t power 5 by 5 minus t cube by 3 plus tan x minus x। t की वैल्यू 10 to the power 5x by 5 minus tan cube by 3 plus tan x minus x plus c। This is the final answer। देखिए कुछ क्वेश्चंस और हम ले 1 अपान ए ई पावर एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में क्वेश्चन है 1 अपान ए ई पावर एक्स प्लस बी। समझ में ही नहीं आता, वैसे सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट भी किया जा सकता था। लेट ए ई पावर एक्स प्लस बी इज ए टी, then a e power x dx is a dt, so e power x dx नहीं है नहीं e power x, then dx is a dt upon a e power x, but a e power x is t minus b, तो dx is a dt upon t minus b।
finally it becomes 1 upon t into t minus b. 1 upon t dx is a dt upon t minus b. Now it should be expressed in the two terms 1 upon t minus 1 upon t minus b. कितना आया? t माइनस बी माइनस टी, तो यहां पर माइनस ये प्लस कर दिया, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, 1/b। ये देखिए, सिंप्लीफाई करिए, यू आर गेटिंग 1/t t माइनस बी। एलसीएम इज टी टी माइनस बी माइनस टी प्लस बी प्लस टी minus t plus t cancel, b is only, that b is cancelled by this b. Now it should be integrated 1/b, पॉजिटिव को पहले कर दिया, log t minus b minus log t। t minus b by t, put the value of t, आंसर आ जाएगा 1/b log t minus b is only a power x upon a power x plus b. This is the final answer. लेकिन ये देखा आपने थोड़ा बड़ा है। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट विल सॉल्व बाय दिस वे ओनली। आप देखिए, मैं इसको थोड़ा आसान कर दे रहा हूं। जो हमने यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन की बात यूज किया वो नहीं यूज करना पड़ेगा। टेकिंग दिस एज कॉमन, ई पावर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, देखिएगा क्या बदल, कितना आसानी से आता है। 1 अपॉन ई पावर एक्स कॉमन, ए प्लस बी अपॉन ई पावर एक्स, दैट इज बी ई पावर माइनस एक्स। हो गया? ई पावर एक्स न्यूमरेटर में गया, आ गया ई पावर माइनस एक्स। ये देखिए, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन सकता है यदि यहां -1/b कर दूं और यहां b कर दूं। अब देखिएगा, माइनस को भी यहां कर दीजिए। अब देखिए, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स। t is equal to a plus b e power minus x, then dt is a minus b e power minus x dx। डिफरेंशिएट कर दिया, dt a का 0, b कांस्टेंट, e पावर माइनस x का माइनस e पावर माइनस x, सो माइनस b e पावर माइनस x माइनस बी ई पावर माइनस एक्स डीएक्स। तुरंत आंसर आ गया -1/b log ऑफ a प्लस बी ई पावर माइनस एक्स। यहां भी हम आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन यदि पावर एक्स को हम प्लस में बदल भी दें तब देखिए क्या आ जाएगा, आई जे 1/b log a प्लस b अपॉन e पावर x, a e पावर x प्लस b अपॉन e पावर x माइनस log m by n, माइनस log m by n is a log n by m, so it is written 1/b log e पावर x अपॉन a e पावर x प्लस b। देख सकते हैं बिल्कुल सेम आंसर, थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा आपको। यह a वो कांस्टेंट है,
सी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। log m n, m को a लिया, ये पूरा b हो गया, log m n, log m प्लस log n, 1 by b log a प्लस 1 by b log e पावर x अपान a e पावर x प्लस b। तो 1 by b log a एडजस्टेड विद c। आप देखिए सेम आंसर लाने के लिए हमने इतना किया, अदरवाइज फाइनली टिल हियर, क्योंकि एक ही मार्क में क्वेश्चन से ज्यादा आता है, तुरंत याद रहे कि e पावर x को यदि मैं कॉमन ले लूं तो मेरा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। वन अपान 2e पावर x प्लस 3। सपोज करिए क्वेश्चन अब न्यूमरल में ले रहा हूं, ए बी में थोड़ा सा दिक्कत दिखती होगी। तुरंत आया, e पावर x कॉमन लिया, 2 प्लस 3 पावर माइनस x, e पावर माइनस x अपान 2 प्लस 3 e पावर माइनस x। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, देखें कि न्यूमरेटर में क्या चाहिए। बिकॉज यू आर नोइंग एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स इज लॉग एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2 का 0, 3 e पावर माइनस एक्स का माइनस e पावर माइनस एक्स मीन्स माइनस 3e पावर माइनस एक्स। तो यहां माइनस 3 चाहिए, जो था नहीं तो उसी से डिवाइड कर दिया, 1 बाई माइनस 3। ये लीजिए, तुरंत आ गया, देखिए एक लाइन में आंसर हमारा, माइनस 1 बाई 3 log यू कैन राइट आंसर हियर ओनली। 1 मार्क के लिए देखिए, इससे ज्यादा हाफ मार्क्स तो मुझको यहां मिल जाएगा। मीन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया और कॉमन आ गया। यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में हाफ हाफ का मार्किंग होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव वाले में आपकी हाफ मार्किंग नहीं होगी। जैसे ही कॉमन लिया तो एग्जामिनर को यह समझ में आया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है क्वेश्चन को कि हाउ दे शुड प्रोसीड। यहां पर हाफ और मिल जाएगा, बिकॉज एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स यू आर नोइंग। तो दो चीज वो आपसे चेक करना चाहता है, एक तो क्या आप ठीक से समझ पाते हैं कि नहीं कि इसको कैसे किया जाए 1 मार्क के लिए। नहीं सर 1 मार्क में इतना लंबा क्वेश्चन, ये जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा आपको। जो पहला टाइप हमने बताया यदि उससे आप कर रहे हैं, फिर आप बाहर निकल के कहते हैं सर क्वेश्चन लेंदी था, बताइए 1 मार्क का क्वेश्चन इतना बढ़ाया गया। आपने प्रॉपर वे से नहीं किया, इसलिए आपको लेंदी दिख रहा है। 2e पावर x dx is a dt. Then what is dx? dt upon 2e power x. But 2e power x is t minus 3. आप यहां से देख सकते हैं 2e power x is a t minus 3. Then I becomes 1 upon t, तो ये हो गया dt हो गया, dt dx हो गया dt बाई t माइनस 3, तो यहां पर t माइनस 3 कर लिया और dt। अब इसको सेपरेट किया, या तो 1 बाई क्वाड्रेटिक से लगाने लगेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t मीन्स 1 बाई क्वाड्रेटिक भी लगाया जा सकता है। देखिए कई मेथड मिलते जा रहे हैं हमको, लेकिन ऐसा ना करके हम इसे लिख दें 1 बाई t माइनस 3
माइनस 1/t और बाहर आ गया 1/3। देखिए सिंप्लीफाई करें, t माइनस t प्लस 3, क्योंकि एलसीएम आएगा t माइनस 3, यहां जाएगा t, यहां माइनस t माइनस 3 मीन्स 3/t माइनस 3 आया और 3 कैंसिल हो गया, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। दिस थिंग विल बी नेम्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेट हो गया 1/3 log t माइनस 3 माइनस log t, log m माइनस log n 1/3 log t माइनस 3/t। t की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 1/3 log t की वैल्यू थी 2e⁻x प्लस 3/2e⁻x। लेकिन इस कांस्टेंट को हम अलग कर सकते हैं log m/n से, 1 log 2 आ जाएगा माइनस में, जो कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। दिस में भी द आंसर। आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इस जो पहले आपने आंसर लिखा है सिंप्लीफाई करने के बाद सेम आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट 1 मार्क में यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि उतना ही आ रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप देखें कि ये सेकंड मेथड कितना लेंदी जा रहा है, इसीलिए आप परेशान होते हैं कि सर क्वेश्चंस तो बताइए 1 मार्क्स का और इतना बड़ा आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन भी करना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा, लेकिन आपने प्रॉपर मेथड से नहीं लगाया। तो ये मेथड जरूर याद रखें कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम तुरंत सब्स्टिट्यूट करें। अच्छा, अभी प्रूफ करने को कहा था कि दिखा दूं मैं आपको कि सेम आएगा आंसर। ये था -1/3। e⁻x को e⁻x में बदल दीजिए, क्योंकि ये e⁻x में है, -1/3 log 2 + 3/e⁻x, -1/3 log 2e⁻x + 3/e⁻x, माइनस log m/n, दैट इज log n/m हो जाएगा, माइनस हटेगा तो रेसिप्रोकल log e⁻x/2e⁻x + 3 + 3। अब आप देखिए बिल्कुल सेम आंसर देख रहे हैं। लेकिन 1 मार्क में नो नीड टू सॉल्व फर्दर, यू कैन लेफ्ट द आंसर हियर ओनली एंड गेटिंग द फुल मार्क्स। एक और क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आता है, कई कंपटीशंस में भी आया हुआ है ये, इस फॉर्म में। इसकी भी वही सिचुएशंस है, वर्किंग मेथड बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही है। इसके भी हम क्या करें, x⁻n को कॉमन ले लें। देख रहे हैं, एक ही जगह x का पावर हो, बाकी सब जगह नहीं, माने फॉर्म हो 1/x एकदम अलग हो, और एक एक्सप्रेशन बाइनॉमियल हो, माने 2 टर्म हो, लेकिन दोनों टर्म में एक कांस्टेंट हो, एक x का पावर हो। समझ रहे हैं ना, x बाहर हो, अगला प्रोडक्ट बाइनॉमियल हो, उस बाइनॉमियल में एक 1 टर्म कांस्टेंट हो और 1 टर्म में x⁻n का एक्सप्रेशन हो, तुरंत x⁻n कॉमन लीजिए। इसको भी आप लोग कई मेथड से लगाते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वो बता रहा हूं मैं। ये
प्लस बी एक्स पावर माइनस एन। एक्स पावर एन बाहर आया, एक्स यहां है, एक्स पावर एन प्लस वन। ए बी अपान एक्स पावर एन, उसको लिख दिया मैंने एक्स पावर माइनस एन। नाउ यू टेक दिस एज टी। लेट ए प्लस बी एक्स पावर माइनस एन इज ए टी। डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स निकालने के लिए, ये हो गया 0, बी एक्स पावर एन का फार्मूला माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन डी एक्स इज डी टी। बी इंटू माइनस एन दैट इज माइनस बी एन। तो x पावर माइनस एन प्लस वन डी एक्स इज माइनस वन बाई बी एन डी टी। मीन्स ये पूरा मिलके वन अपान एक्स टू द पावर एन प्लस वन डी एक्स इज माइनस वन बाई बी एन डी टी ओनली। Minus 1 by bn is a constant. 1 by t dt. That is a log t. 1 by bn log t. t की वैल्यू रख दूंगा, आंसर आ गया। t की वैल्यू रख देंगे। ए प्लस बी अपान एक्स पावर एन, माइनस एन के बजाय पॉजिटिव में बदल दे। एलसीएम ले लूंगा, ए एक्स पावर एन प्लस बी अपान एक्स पावर एन। माइनस हटाना है तो log m बाई एन है, log n बाई m हो जाएगा 1 अपान बी एन log दिस वॉज द आंसर। इस पे न्यूमरल ही आएगा, यन तो नहीं आता है, लेकिन न्यूमरल भी आए तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कैसे किया जाए। एक दो क्वेश्चन न्यूमरल लेके कर भी रहा हूं मैं। वन बाई एक्स 3x टू द पावर 4 प्लस 7 देख रहे हैं। कैसे किया जाए, कॉमन ले लें x पावर 4 को, तो क्या आ जाएगा x पावर 5 दैट इज x टू द पावर माइनस 5 अपान 3 प्लस 7 एक्स पावर माइनस 4। नहीं समझ में आई बात? तो एक स्टेप बढ़ाएंगे, x इंटू एक्स पावर 4 3 प्लस 7 अपान एक्स पावर 4। ये तो समझ में आ गया बात। x ऐसी एज इट इज, एक्स पावर 4 कॉमन, तो यहां बचा 3 7 अपान एक्स पावर 4। वही देखिए लिखा है x इंटू एक्स पावर 4 एक्स पावर 5। यहां से डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर गया तो एक्स पावर माइनस 5 बच गया 3 प्लस 7 एक्स पावर माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हम एफ डैश एक्स बाई न्यूमरल है तो हम सीधा सीधा बना लेंगे एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। इसके डेरिवेटिव की बात सोचें तो देखिए बनेगा -28, क्योंकि 7 इंटू -4 एक्स टू द पावर -5 n -1। तो एक्स पावर -5 मेरे पास है, -28 नहीं है, तो लिख दूंगा यहां आ जाएगा -1/28 और यहां कर दीजिए -28 एक्स पावर -5। अब आप देखें ये एफ डैश एक्स
और ये क्या है, एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स और ये एफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये लाग एफ एक्स डायरेक्ट लगा लिया, हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। आंसर। अधिक से अधिक आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, एक्स पावर 4 बदल देना, एक्स पावर 4 एलसीएम आ जाएगा 3x पावर 4 प्लस 7 हो गए। यहां आंसर छोड़ सकते थे। माइनस भी हटाना है तो बदल दीजिए 1/28। अब ये सब तो केवल सिंप्लीफिकेशन है, बट फाइनल इंटीग्रेशन तो मेरा यहीं पर हो गया। 1/28 log x पावर 4 3x पावर 4 प्लस 7 प्लस c। ओके, कुछ और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बहुत 1/1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 प्लस काट x 1 माइनस काट x 1/1 प्लस 10x 1/1 माइनस 10x 1/1 प्लस काट x 1/1 माइनस। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको एग्जाम के समय आपको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना चाहिए, दिमाग में बना के रहना चाहिए कि वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगेगा। सबको साइन कास में मैं बदलूं तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कास एक्स मीन्स ये आ जाएगा कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। वन अपान 1 प्लस साइन एक्स बाई कास एक्स, कास एक्स एलसीएम ऊपर चला गया, कास एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, चाहे साइन एक्स प्लस कास एक्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। इसे चेंज करूंगा तो देखिए यहां भी एलसीएम आएगा, कास एक्स न्यूमरेटर में चला गया, ये आ जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स। यहां करेंगे तो यहां एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहां भी एलसीएम आएगा साइन एक्स, यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है यदि आपको बिल्कुल ठीक से समझ में नहीं आया था, ठीक से आपने याद नहीं किया था कि यह क्वेश्चन मेरा इस तरह से लगना है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इसको एग्जाम से ठीक पहले जरूर अपने दिमाग में बना के जाएं कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहे ये वाला हो या यह वाला हो, कैसे हम करेंगे। देखिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो डिनोमिनेटर में है वो सीधा सीधा लिख दीजिए, डायरेक्टली डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दीजिए। मैंने साइन एक्स प्लस कास एक्स एक ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर रहा हूं। दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा जगह छोड़ के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दीजिए, कास एक्स माइनस साइन एक्स। बीच में साइन प्लस या माइनस लगाएं कि यदि कास है तो कास वाला बचा रहे, साइन वाला कट जाए, साइन हो तो साइन वाला बचा रहे, कास वाला कट जाए। तो यहां देख रहे हैं प्लस लगाने से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कास एक्स बचेगा।
1/2। वाई 1/2 क्योंकि 2 cos x आ गया, cos x नहीं आया, 2 cos x आ गया। ब्रैकेट ओपन हुआ, sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस sin x कैंसिल, cos x प्लस cos x 2 cos x। माने हमने cos x को क्या लिख दिया है, हाफ sin x प्लस cos x माइनस sin x। ऐसे ही यदि ये वाला रहेगा तब भी देख ले, फिर से अलग लिख दे रहा हूं, cos x माइनस sin x, एक ब्रैकेट में डिनोमिनेटर वाला, दूसरे ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x, नहीं माइनस cos। ठीक है, cos x माइनस sin x जो भी डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस cos x। बीच में क्या लगाएं कि cos बचा रहे, यदि माइनस लगाएंगे तभी cos बचेगा। ठीक है, देख सकते हैं, फिर से ओपन कर दे रहा हूं, cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x, तो माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल होगा, 2 cos x माने 1/2। सेपरेट करिए, तुरंत आंसर हाजिर। ये आ गया 1 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये इंटीग्रेट हो गया 1 का x, ये f डैश x अपान f(x), f डैश x अपान f। आपने तो डेरिवेटिव इसका लिखा ही था, पक्का है f डैश x रहेगा हरदम। यहां भी वही सेपरेट किया, पहला टर्म हरदम 1 आएगा, माइनस sin x माइनस cos x अपान cos x माइनस sin x। x माइनस log cos x माइनस sin x प्लस c। ये दोनों लगाएंगे, हम केवल चेंज करके बता दे रहे हैं। ये देखिए, डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x, दूसरे में डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, बीच में प्लस या माइनस लगाएं कि sin x आए, माइनस। माइनस लगेगा तब cos x कटेगा, sin x बचेगा, तो 2 sin x दैट इज 1/2 कर दिया। अब फिर सेपरेट किया, मैंने यही क्वेश्चन आया, बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, बीच में माइनस साइन रहेगा यहां। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस मच। और कुछ क्वेश्चन देखें। A sin x प्लस B cos x, C sin x प्लस D cos x। A sin x प्लस B cos x अपान C sin x, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस रहे चाहे माइनस रहे।
ये बड़ी समस्या होती है इस क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रोसेस, नॉट रिमेंबरिंग, देन वेरी डिफिकल्ट टू डू सच क्वेश्चंस। ए साइन एक्स प्लस माइनस प्लस हो चाहे माइनस हो, बी कास एक्स। सी साइन एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो, डी कास एक्स। तुरंत लेंगे न्यूमरेटर इज लेमडा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को तुरंत क्या मान लेंगे? लेमडा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कास एक्स। साइन एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट का, साइन एक्स का कोफिशिएंट राइट का इक्वेट कर देंगे। लेमडा म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा। कास एक्स के कोफिशिएंट को लेफ्ट का राइट का कंपेयर करेंगे, फिर आपको लेमडा म्यू में एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। सिमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, लेमडा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देंगे, पक्का है इसका आंसर हरदम आता है लेमडा एक्स प्लस म्यू टाइम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। फाइनल आंसर ये रहेगा, माने लेमडा म्यू की वैल्यू ही निकालना मेन है। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? लेमडा टाइम एक्स प्लस म्यू टाइम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। देखिएगा कैसे मैं इसको आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। न्यूमरेटर को क्या लिखना है? लेमडा टाइम डिनोमिनेटर मींस सी साइन एक्स प्लस या माइनस डी कास एक्स प्लस म्यू टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मींस सी कास एक्स, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, क्योंकि कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। डी कास एक्स, डी साइन एक्स हो गया, होल अपॉन सी साइन एक्स प्लस माइनस डी कास एक्स। सेपरेट किया तो लेमडा कांस्टेंट बाहर आ गया, सी साइन एक्स प्लस माइनस डी कास एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस माइनस डी कास एक्स 1 आ गया, प्लस 1 को 1 डी एक्स लिख दिया, म्यू कांस्टेंट बाहर आ गया, ये आया सी कास एक्स माइनस प्लस डी का डी साइन एक्स प्लस माइनस डी कास एक्स। अब देखिए आंसर तुरंत हाजिर, इमीडिएट आ गया। लेमडा टाइम एक्स 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस म्यू टाइम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहां है सी कास एक्स माइनस प्लस डी साइन एक्स, तो लॉग ऑफ कांस्टेंट। बस केवल लेमडा म्यू की वैल्यू निकालना मेन है, लेमडा म्यू की वैल्यू निकालना ही मेन है, ठीक है ना। एक न्यूमेरल लेके कर रहा हूं मैं ताकि आपको आइडिया भी लग जाए। थ्री साइन एक्स माइनस 5 कास एक्स टू साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स। देखते ही आइडिया लगी
our question is this one, a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x। हम तुरंत सपोज कर लें 3 sin x minus 5 cos x न्यूमरेटर is equal to lambda time denominator 2 cos x minus 3 sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x तो हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अरे गलत लिख दिया भाई, सॉरी, लेमडा टाइम डिनोमिनेटर ना एज इट इज आना चाहिए ना, 2 sin x प्लस 3 cos x। न्यू टाइम डेरिवेटिव मीन्स 2 cos x minus 3 sin x। न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लेमडा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 cos x minus 3 sin x। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ sin x, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ sin x, वी गेट लेफ्ट साइड में sin x का कोफिशिएंट 3, राइट साइड में देखेंगे 2 लेमडा माइनस 3 म्यू, 2 लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 3। sin x का कोफिशिएंट हियर 2 लेमडा एंड फ्रॉम हियर माइनस 3 म्यू, और लेफ्ट में तो 3 है ही। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ cos x, -5, साइन का ध्यान देंगे इसीलिए हमने माइनस भी लिया है भाई। यहां देखिएगा 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, 3 लेमडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन आ गए, 2 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा आइदर बाई एलिमिनेशन मेथड और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एज यू वांट। उसमें मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। आई एम गोइंग टू कंपेयरिंग equating the coefficient of lambda, multiply by 3, this multiply by 2, what we are getting 6 lambda minus 9 mu is equal to 9, 6 lambda plus 4 mu is equal to minus 10। सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, minus 13 mu is equal to 19, so mu is a माइनस 19/13। लेमडा म्यू की वैल्यू रखेंगे किसी एक में आ जाएगा 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 म्यू मीन्स -57/13। एलसीएम आया 13, 26, 39 -57। 2 लेमडा इज minus 17 minus 9, 8, 18/13, so lambda is minus 9/13। lambda is minus 9/13, mu is minus 19/13। आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लें क्योंकि lambda म्यू की वैल्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 lambda means minus 18/13 माइनस 3 म्यू प्लस 57/13। ऐड कर लीजिए इसको, क्या आएगा 17 minus 8 दैट इज 9, 4 minus 1 3/13 comes 3, it means our answer is correct। ओके, वैसे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सेटिस्फाई हमको फिर से चेक ना करना पड़े।
तो न्यूमरेटर को क्या लिखना है, लेमडा टाइम, लेमडा की वैल्यू मत रखिए, फाइनल आंसर के समय लिखिएगा, लेमडा टाइम 2 साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स प्लस न्यू टाइम 2 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स होल अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स। सेपरेट कर दिया, लेमडा टाइम प्लस म्यू 2 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स। अलग अलग कर दिया रे, लेमडा दिस अपॉन दिस तो ये कट गया, केवल लेमडा बचेगा, यहां बचेगा म्यू टाइम दिस बाई दिस एज इट इज, लेमडा का इंटीग्रल लेमडा एक्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है, 2 साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स। अब लेमडा मी की वैल्यू रख दें, लेमडा इज ए माइनस 9/13 माइनस 19/13 प्लस 3 कास एक्स प्लस कांस्टेंट सी, दिस वाज आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने तुरंत, यदि हमें स्ट्राइक नहीं किया, वाइल वी आर यूजिंग द बुक्स, बुक में इस तरह के एक एक्सरसाइज ही पूरी रहती है, आपको पता है कैसे करना है, बट whenever you are appearing in the examination, then it is difficult to identify कि कहाँ का है। तो वेराइटीज मुझे अलग अलग तो याद रहे भाई, ये वेराइटी का वे यह है, इस वेराइटी का यह वे है, तभी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के सॉल्व हो सकते हैं। एक दो वेराइटी जोड़ लेंगे हम। 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स सी साइन एक्स कास एक्स प्लस डी। इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम यह हो सकता है कि न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में हो सकता है कि साइन स्क्वायर भी आ जाए, साइन इंटू कास भी आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। ए बी सी डी आर एनी रियल नंबर्स, ज्यादातर ये इंटीजर्स ही रहते हैं, तो ये ध्यान दें कि यदि बी 0 हो गया तो बन गया ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कास एक्स प्लस डी। बी और डी दोनों 0 हो गए तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कास एक्स डी। बी और सी 0 हो गए तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी। समझ रहे हैं ना? चारों टर्म नहीं आएंगे निश्चित रूप से, मैक्सिमम 3, अदरवाइज ज्यादातर आई विल फाइंड कि 2 ही रहते हैं। सी और डी 0 हो गए तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का सी स्क्वायर एक्स केवल रह जाएगा। जैसा क्वेश्चन मुझे देना, हो सकता है हम 2 नंबर में चाहते हैं, 1 नंबर में चाहते हैं, 4 नंबर में चाहते हैं, इट इज डिपेंडिंग ऑन अस। देन व्हाट्स इट्स वर्किंग। तुरंत कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें। कास स्क्वायर एक्स कॉमन लेने का मतलब 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, दैट इज ए टेन स्क्वायर एक्स। ये तो केवल बी रह जाएगा। यहां कास स्क्वायर एक्स कॉमन आया, मींस डिवाइड, एक कास कट गया, साइन एक्स बाई कास एक्स, सी टेन एक्स हो गया, प्लस डी सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन कास स्क्वायर एक्स, दैट इज डी सेक स्क्वायर एक्स, उसे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, लेट टेन एक्स इज 80। We are getting sec square x dx is dt.
तो ऊपर आ गया 1 dt a tan स्क्वायर एक्स डी tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया a प्लस डी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बी प्लस डी 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 1 बाई क्वाड्रेटिक में एक बढ़ गया, तो केवल मैं 1 बाई क्वाड्रेटिक बताया था 2 नंबर में, ऐसा आ गया तो 3 नंबर। बट यू शुड रिमेंबर इफ योर इंटीग्रैंड इज 1 अपान ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कास एक्स प्लस डी है, आउट ऑफ दीज 4 सम में बी 0। Immediately I will take common cos square x. Denominator will be reduced in the term of tan x and numerator will be the sec square x dx. tan x को t लेते ही हमारा एक्सप्रेशन 1 बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसमें छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए मैं ले रहा हूं, 1 अपान 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कास स्क्वायर एक्स, 1 अपान 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कास स्क्वायर एक्स। इमीडिएट आया कि भाई ये तो सी और डी 0 है। कहीं कहीं इसको 4-5 फॉर्म में लिखा है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कास एक्स। तो हम उतना एक्सप्रेशन नहीं कहीं नहीं ले रहे हैं, एक सिंगल एक्सप्रेशन से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुरंत कास स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, ये आ गया 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9, that is sec square x upon 4 tan square x plus 9. Let tan x is a t, sec square x dx is a dt, comes 1 upon 4t square plus 9. डायरेक्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, टेकिंग 4 कॉमन प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये तो 1/4 रहेगा, 1 बाई ए 1 अपान 3/2 दैट इज 2/3, tan इनवर्स t बाई ए, t अपान a 3/2, तो 2t/3, 2 to the 4, आंसर इज 1/6 tan इनवर्स 2t means 2 tan x by 3. This is the answer. 1/6 tan इनवर्स 2 tan x by 3 is the answer. आप देखिए जब न्यूमरल कर दिया, सी और डी को 0 कर दिया तो आसान हो गया। ऐसे ही यदि यहां पर 4 कास स्क्वायर एक्स प्लस 9 होता तो कास स्क्वायर एक्स कॉमन आता, 4 प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स बनता, सेक स्क्वायर को हम tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख देते, फिर tan x इक्वल टू t। तो यहां तो समस्या नहीं होती। तो समझे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो भी कॉमन हम कास स्क्वायर एक्स ही लेंगे, और कास स्क्वायर एक्स है तब तो लेंगे ही लेंगे कास स्क्वायर एक्स। लेकिन डाउट ऐसे में आता है, कई बार मैंने देखा 1 अपान केवल आ गया 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स, उसी फॉर्म में है, ए और बी 0 है। क्या हो गया? ए और बी 0 है।
तो समझ में नहीं आता कि cos स्क्वायर एक्स कॉमन लूं, जबकि इसको cos एक्स कॉमन लेना है। 1/cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहां बचा 1/cos स्क्वायर एक्स दैट इज sec स्क्वायर एक्स, उसको लिख दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स + tan एक्स। ठीक, 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स को हमने 1 + tan स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में हुआ sec स्क्वायर एक्स अपान tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1। लेट tan एक्स इज ए t, sec स्क्वायर एक्स dx इज ए dt, बिल्कुल सेम है जे बाब 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बाई क्वाड्रेटिक कर लेंगे, कॉमन नहीं लेना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट 1/4, ये बन गया 1/t प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1 + t/2 होल स्क्वायर, 1 - 1/4 दैट इज प्लस 3/4, तो √3/2 का होल स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स 2/√3, 1/a किया तो 2/√3, tan इनवर्स x/a मीन्स t + ½ अपान √3/2, t + ½ अपान √3/2, फाइनली 2/√3 tan इनवर्स 2t + 1 अपान √3, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x, 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1 अपान √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही सब। तो देखिए आज मैंने आपको 1 बाई क्वाड्रेटिक को कैसे चेंज करेंगे, कितना चेंज हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया। एक इसमें और आता है 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, दिस इज द लास्ट वन। Not necessarily all three are there. Maybe 1 0 हो सकता है, b 0 हो तो a sin x प्लस b, हो सकता है a 0 हो तो b cos x प्लस c, हो सकता है c 0 हो तो a sin x प्लस b cos x। Then what's working? I will take sin x, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं कि sin x में भी रिटेन एज 2 tan x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2 एंड cos x इज 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। sin x को 2 tan x/2 हाफ एंगल ऑफ tan में लिख देंगे, cos x को 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर बिकम sec स्क्वायर x/2, क्योंकि दोनों में आप देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर x/2 आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर x/2 माने sec स्क्वायर x/2, तो वह sec स्क्वायर x/2 डिनोमिनेटर में भी वो अपान में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा, ऊपर आता है sec स्क्वायर x/2 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x/2। tan x/2 में क्वाड्रेटिक आएगा क्योंकि cos x के साथ tan स्क्वायर आया है, tan x भी आएगा, tan स्क्वायर भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी आएगा।
we will take tan x by 2 is equal to t. यहां गलती क्या होती है बताऊंगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज ए 2 डी टी। ये बन जाएगा 2 डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, मीन्स फिर वही 1 बाई क्वाड्रेटिक, फिर से आ गया 1 बाई क्वाड्रेटिक। तो ध्यान दें कि 1 बाई क्वाड्रेटिक का एक ये भी मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। अब आज यहीं पर खत्म करते हैं। क्वाड्रेटिक वाला माने क्वेश्चन ओवर हुआ। 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, ओनली रूट क्वाड्रेटिक, linear by quadratic, linear by root quadratic, linear into root quadratic, and some of the questions which can be reduced in that form also I have discussed today. From tomorrow we will take either partial fractions as well as product rule. Both I will try to over next term. Thank you.